What are the uses of passive voices? What are the special places where uses of passive voices are mandatory? Is there any use of learning the framing of passive voice? Yes, of course, it is. See, in normal conditions, the uses of active voice is better, especially when you are beginner. It is better to speak or write the sentences in active voice. That means the framing of sentences must be simple in tenses. But if you wish to bring your writing style to the next level, it is better you should start improving your writing style. So among different writing styles, passive voice is the next step just after tenses. So many people say, is it important to use passive voice in our sentences? Yes, of course, it is actually not very much important, but there are some of the places where sentences means uses of passive voice becomes mandatory. Means there are some of the places where you cannot frame the sentence in active voice. Then sometimes it also happens that our writing style gets boresome. The reader starts getting bored reading our writing. So it is better to improve our writing style, or if you really wish to raise the curiosity of the reader, if you really wish to focus the attention of the reader, you will have to bring a different writing style in your writing. So if you are learning the uses or framing of passive voice, it is always very good for you. So through this last session of passive voice, I am going to tell you some of the places are there where passive voice is very much useful, and then some of the places are there where only the passive voice sentences are framed. You cannot frame some of the sentences in active voice. So what are those places, and which are other writing styles that we can apply through this passive voice in our writing, that we are going to understand through this session. So let's start blooming through this last session of passive voice. Why to use passive voice? So use number 1. When we wish to focus the attention of the listener on a particular thing or person, जब भी हमें रीडर का या लिसनर का जो फोकस है किसी एक स्पेशल थिंग या पर्सन की तरफ अट्रैक्ट कराना होता है, फोकस कराना होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं. ये यूज तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि जिस चीज को हमें हाईलाइट करना होता है उसको हमें क्योंकि पहले लाना होता है, इसीलिए हमें पैसिव वॉइस का जो यूज है वो ज्यादा बेटर हम मानते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, these documents were signed by Mr. Sinha. These documents, focus on documents. इस सेंटेंस में हमारा ये जानना जरूरी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साइन हुए हैं. तो हमारा जो फोकस है वो एक्चुअली क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स पर है. ठीक है, तो इसी वजह से यूजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हमें आगे लाना जरूरी है. दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. दीज डॉक्यूमेंट्स वर साइंड बाय मिस्टर सिन्हा. ठीक है, इन द सेम वे मिस्टर सिन्हा साइंड दीज डॉक्यूमेंट्स. अब यहाँ पर ये सेंटेंस किस में है, किस फॉर्म में है, ये एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि इस समय हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट साइन किसने किए. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट साइन किसने किए ये जानना हमारा ज्यादा जरूरी था. इस वजह से इस सेंटेंस को हमने एक्टिव वॉइस में बनाया. लेकिन कौन से डॉक्यूमेंट साइन किए ये जानना हमें जब जरूरी है, तो उस सेंटेंस को हमने उसी सेंटेंस को किस में चेंज कर दिया, पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया. ठीक है, देन द नेक्स्ट वन, in order to put
the new information at the end of the sentence just to surprise or grab the attention of the reader or the listener. अब कभी कभी क्या होता है, वैसे तो हम यही मानते हैं कि जब भी हमें जिस भी सब्जेक्ट को हाईलाइट करना होता है तो उसे हमें पहले लाना होता है, इसलिए हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं. लेकिन कभी कभी हमें रीडर को या लिसनर को क्या है, सरप्राइज करना होता है, और वी विल हैव टू ग्रैब द अटेंशन और फोकस द अटेंशन ऑफ द लिसनर और रीडर. सो जस्ट फॉर अ सरप्राइज, एज अ सरप्राइज, व्हाट वी डू, the new information that we are adding that must be placed at the end of the statement. तो ऐसी कंडीशन में भी हमें क्या है कि अगर हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं सेंटेंस तो ज्यादा बेटर माना जाता है. बट इसमें अपोजिट थिंग क्या होती है कि वो जो न्यू इंफॉर्मेशन है जिसकी तरफ हमारे माइंड को, हमें रीडर के माइंड को हाईलाइट करना है, सॉरी फोकस करना होता है, तो उसमें क्या होता है कि मेन सब्जेक्ट को हमें एंड में ले जाना होता है. तो ऐसी कंडीशन में भी हम पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है अगर हम बनाते हैं तो ज्यादा बेटर होता है. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द पोएम्स इन योर कोर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन पोइट्री. मोस्ट ऑफ द पोएम्स इन योर सिलेबस और कोर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम American poetry. So we want to inform to students that most of the poems have been taken from American poetry. तो American poetry की तरफ हमारा जो माइंड है रीडर्स का, लिसनर का, फोकस कराना है. तो इस वजह से हमने इस सेंटेंस को इसमें बनाया, पैसिव वॉइस में बनाया. ठीक है. इसी तरीके से टू poems have been taken especially from Robert Frost poetry, one of the most famous poets of America. तो हम स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अमेरिका के बहुत ही फेमस पोइट्स में से एक हैं, उन पोइट की 2 पोएम्स आपके सिलेबस में ऐड है. ठीक है, 2 पोएम आपकी ऐड है. तो ये हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन है. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या थी कि मोस्ट ऑफ द पोएम्स जो है वो क्या है, अमेरिकन पोइट्री से ली गई है. तो अमेरिकन पोइट्री की तरफ क्या है, हमारा जो रीडर्स का जो ध्यान है वो ग्रैब कराना है. ठीक है. सेकंड में क्या है कि दूसरी न्यू इंफॉर्मेशन क्या है कि हमें ये बताना है कि एक ही पोइट जो कि अमेरिका के बहुत फेमस पोइट्स में से एक हैं, उन एक ही पोइट की 2 पोएम हमारे क्या है सिलेबस में हैं. ठीक है. तो इस तरीके से व्हेन वी विश टू ऐड द न्यू इंफॉर्मेशन एज अ सरप्राइज, व्हेन वी नीड टू ऐड द न्यू इंफॉर्मेशन एज अ सरप्राइज फॉर द रीडर्स और लिसनर्स, at that time we must frame the sentence in passive voice. Next one, it is not mandatory. ये mandatory नहीं है, लेकिन आपको जैसे हमने बताया कि अपनी राइटिंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने के लिए. Now see this one, the next one. This is the actual condition when we really need to use passive voice. यहाँ पर भी सेंटेंस हम चाहे तो डायरेक्टली एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं. देखिए, इन ऑर्डर टू पुट द न्यू इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टू टर्न द स्टाइल ऑफ राइटिंग फ्रॉम बोरिंग टू इंटरेस्टिंग वन. यानी जब हमें राइटिंग स्टाइल को बोरिंग से इंटरेस्टिंग वन में बनाना है. एग्जाम्पल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज कंपोज्ड डस्ट ऑफ स्नो. रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज कंपोज्ड डस्ट ऑफ स्नो. फायर एंड आइस हैज ऑल्सो बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके. अब देखिए, अगर हम यही सेंटेंस अगर हम ऐसे लिखते कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज कंपोज्ड फायर एंड आइस also. Now framing of this sentence is also correct. Robert Frost has composed dust of snow. Robert Frost has composed fire and ice also. The framing of the sentences are looking similar. ठीक है. तो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसी सेंटेंस को जैसे ही हमने टर्न किया, Robert Frost has composed dust of snow. Fire and ice has also been composed by Robert Frost. तो क्या हुआ, राइटिंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज आया. ठीक है, चेंज आया. ठीक है. तो इस तरीके से राइटिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाने के लिए, चेंज लाने के लिए हमें पैसिव वॉइस का जो यूज है वो ज्यादा बेटर माना जाता है, वह लगता है. ठीक है. It is up to you. You want to change it or not. It is not mandatory. Okay. It is simply up to you. Okay.
बट अगर आप चाहते हैं तो इसका इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ सी, these are some special cases when the object in passive voice is not necessary to add. For example, when, who or what causes the action is unknown or unimportant. जब हमें ये जानना जरूरी नहीं होता है कि किसने काम किया, एजेंट कौन था, डूअर कौन था, जब ये हमारा जानना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में भी हम पैसिव वॉइस करते हैं। या फिर जो डूअर है, जो अननोन है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, उसका यूज करना भी अनइम्पॉर्टेंट है, तो उस कंडीशन में भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। देन व्हेन द डूअर इज ऑब्वियस और पीपल इन जनरल नोन, जो हमें ऑलरेडी पता है कि डूअर कौन है ना, डूअर ने क्या काम किया ये जानना हमारा ज्यादा जरूरी है, ना कि ये जानना कि किसने किया, क्योंकि किसने काम किया वो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो वो हमारा जानना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। आई एम टेलिंग यू विद एग्जांपल्स आल्सो। देन नेक्स्ट वन, नेचुरल फेनोमेनन। नेचुरल फेनोमेनन, नेचुरल डिजास्टर की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है, जो भी वर्क है, यानी कि जो उसका डूअर है, कोई ना कोई नेचुरल रीजन है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो भी, क्योंकि वो भी हमें पता है ऑलरेडी, तो ऐसी कंडीशन में भी पैसिव वॉइस का यूज जो है वो ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। नाउ सी द एग्जांपल्स। व्हेन the doer is unimportant or unknown. My purse has been snatched. Now somebody snatched my purse. My purse has been snatched. तो ऐसी कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है, जो थीफ होगा, है ना, उसने हमारा पर्स जो है स्नैच किया होगा, और वो थीफ जो है वो अननोन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो My purse has been snatched by someone या by thief हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ हमारा जो सेंटेंस जो है यहीं तक फिनिश कर सकते हैं, उसमें जो हमारा एजेंट है यानी उसको मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और इस तरीके के सेंटेंसेस मोस्टली पैसिव वॉइस में ही बनते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बिल्कुल फर्स्ट सेशन में, जब पैसिव वॉइस का सेशन स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि समबडी, कभी कभी अगर हम ये बोल रहे हैं समवन स्नैच्ड माय पर्स, तो लोगों का जो ध्यान है उतना जल्दी फोकस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप बोलोगे माय पर्स हैज बीन स्नैच्ड, तो अचानक से जो लोगों का जो माइंड है एकदम से ग्रैब होगा, ठीक है। तो इस वजह से भी पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसका जो यूज है वो ज्यादा बेटर माना जाता है। इन द सेम वे, दिस डैम वाज बिल्ट लास्ट ईयर, अनइम्पॉर्टेंट। हु बिल्ट, वी ऑलरेडी नो, इट इज अनइम्पॉर्टेंट टू नो। लेबरर्स जो होंगे, बनाया होगा उन्होंने, कोई भी वर्क है, कोई स्टाफ कर रहा है, लेबर कर रहे हैं, किसी भी तरह के कम्युनिटी मेंबर्स कर रहे हैं, तो हमको ऑलरेडी नोन है, ठीक है, तो उनका जानना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या यूज करते हैं, पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। द डैम वॉज बिल्ट लास्ट ईयर। देन नेक्स्ट वन, in the same way the thief was arrested when the doer or agent is obvious, already clear है कि हमें पता है। the thief was arrested by police, the thief was arrested by police। अब हमको पता है कि thief को अरेस्ट कौन करता है, पुलिस ही करती है, तो हमें उसको मेंशन करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके दो यूजेस हो गए कि एक तो ये हुआ कि पैसिव वॉइस में कौन से प्लेसेस होते हैं जहां पर डूअर का, एजेंट का मेंशन होना कोई जरूरी नहीं होता है, यानी कि पैसिव वॉइस में कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं ना कि बाय करके जो डूअर है वो लिखना जरूरी होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं होता है हर केस में। तो कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर एजेंट का मेंशन करना कोई जरूरी नहीं होता है, तो वो ये ऐसे केसेस होते हैं। और इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं जिनके हमारे डूअर क्लियर होते हैं, तो वो सेंटेंसेस अगर हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ज्यादा बेटर माने जाते हैं। ठीक इसी तरह से द फॉर्म वाज रजिस्टर्ड ऑनलाइन, एजेंट, स्टाफ, पीपल इन जर्नल। पीपल इन जर्नल हमको पता है कि जो भी ऑनलाइन वहां पर स्टाफ बैठे होंगे उन्होंने रजिस्टर किया होगा फॉर्म, ठीक है, तो वो भी हमको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं पैसिव वॉइस में ही ज्यादा बेटर माने जाते हैं, ठीक है। अगर हम बोलेंगे स्टाफ रजिस्टर्ड द फॉर्म्स ऑनलाइन, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये उतना अट्रैक्टिव सेंटेंस नहीं है। द फॉर्म वाज रजिस्टर्ड ऑनलाइन, द फ्रेमिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज बेटर देन द प्रीवियस वन।
Then the next one, natural phenomenon. All the trees were found fallen down on the roads. My coffee has been cold. So नेचुरल सी बात है, टेम्परेचर में चेंज की वजह से क्या हुआ, कॉफी कोल्ड हो गई. ठीक है, नेचुरल फेनोमेनन. ऑल द ट्रीज वर फॉलन डाउन ऑन द रोड्स. यू ऑलरेडी नो, बाय स्टॉर्म वगैरह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यू ऑलरेडी नो. इस तरीके के देखो सेंटेंसेस मोस्टली आपको मिलते हैं न्यूज़पेपर हेडिंग्स में और न्यूज़पेपर राइटिंग. न्यूज़पेपर के जो मीन्स आर्टिकल राइटिंग्स वगैरह होती हैं. तो अर्लियर जो हमारे क्लास 10th CBSE के जो इंग्लिश के एग्जाम्स होते थे उसमें मोस्टली पैसिव वॉइस आता था और उसमें न्यूज़पेपर हेडलाइन भी आती थी. ठीक है, तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो है वो मोस्टली पैसिव वॉइस में ज़्यादा बेटर मानी जाती हैं. ठीक है, तो ये भी एक यूज़ है. अगर आप इस तरीके की कोई राइटिंग लिख रहे हैं जो कि आर्टिकल के फॉर्म में है या न्यूज़पेपर की हेडलाइन के फॉर्म में है या न्यूज़पेपर की राइटिंग के फॉर्म में है, तो वहां पर भी पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं वो ज्यादा सूटेबल माने जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अंडरस्टूड है, आपको शायद पहले से ही पता है कि स्टॉर्म वगैरह कल रात को आया था कि जिसकी वजह से सारे पेड़ जो है वो रास्ते पर गिरे हुए हैं. सो यू नीड नॉट मेंशन हु इज द डूअर because they had been occurred naturally. All the trees were found falling down on the roads. My coffee has been cold. Okay. Then the next one, when we are writing any factual writing or factual passage. Lal Bahadur Shastri was born on 2nd October in 1904. The Taj Mahal was built in between 1631 to 1648. यहाँ पर हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं. तो जब हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी पैसिव वॉइस का जो यूज है वो ज्यादा बेटर माना जाता है. The other condition, I was born in Agra. I was born in Agra और लाल बहादुर शास्त्री was born on 2nd October. तो अब यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं, she was drowned in the river. ये पैसिव वॉइस में ही फॉर्म होते हैं, इनका एक्टिव वॉइस नहीं होता है, ये पैसिव वॉइस में ही फॉर्म होते हैं. या मैंडेटरी हम कह सकते हैं कि मैंडेटरी होते हैं पैसिव वॉइस में ही बनाना. ठीक है, इन सेंटेंसेस को हम समझ सकते हैं कि यानी कि कोई भी एक्टिविटी है जब उसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, कोई भी अननोन सोर्स है, कोई भी डायरेक्ट सोर्स नहीं है जिसके थ्रू हम उसमें एक्टिव हुए हो और पार्टिसिपेट किया हो किसी भी एक्शन में. जैसे कि शी वॉज ड्राउंड इन द वाटर. कोई भी इंसान अपने आप को तो डुबोएगा नहीं पानी में, कोई भी नेचुरल फोर्स होगी, कोई भी रीजन होगा, है ना. तो ऐसी कंडीशन में जो सेंटेंसेस हैं वो पैसिव वॉइस में ही बनते हैं, मैंडेटरी भी है और इनफैक्ट इनका एक्टिव वॉइस नहीं होता है. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं द रिवर ड्राउंड हर, तो ऑकवर्ड सेंटेंस है ना. रिवर जो है एक तरीके से क्या है, ये लिविंग बीइंग है हम मान सकते हैं, बट प्रॉपरली एक ह्यूमन बीइंग नहीं है ये. ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है कि रिवर ने डुबो दिया, अपने आप नहीं खींचा ना रिवर ने. ठीक है, तो एक नेचुरल कैलेमिटी की वजह से समझ लीजिए या किसी भी नेचुरल फोर्स की वजह समझ लीजिए कि वो डूब गई, है ना. तो जब किसी भी एक्शन में हम डायरेक्टली इंडल्ज नहीं हुए हैं, ठीक है, कोई और सोर्स है, तो ऐसी कंडीशन के जो सेंटेंसेस हैं वो भी पैसिव वॉइस में ही बनते हैं. ओके, देन नेक्स्ट द लास्ट वन, व्हेन sentences are very long, when your sentences are very long, in such conditions as well, the uses of passive voice are supposed to be better. So I was overwhelmed by the performance of my students in their exams. ठीक है, तो सेंटेंस जब हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में हो, बहुत लॉन्ग फॉर्म में होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाना ज्यादा बेटर माना जाता है. आई वाज सरप्राइज्ड बाय हाउ परफेक्टली यू हैव नोटेड डाउन ऑल द पॉइंट्स. आई वाज शॉक्ड बाय हियरिंग दैट ही हैज बीन नो मोर इन दिस वर्ड. Okay, so these are some of the sentences that we must always make in passive voices only. So these are some of the uses of passive voice. I hope from the next time you are going to adopt this style in your writing. So
Till then, goodbye. If you have not subscribed my channel till now, if you are new at my channel, kindly subscribe my channel because I try to bring such kinds of grammar lessons on the daily basis. So, till then, goodbye.